मन में मेरे आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। हालेलुया। आइए उससे पुकारते हैं, उसकी उपस्थिति में हमारा प्रवेश करते हैं। कहे उसे कि तू आ हमारे बीच में, आहा हमें अपनी उपस्थिति से तू भर, अपनी आत्मा से भर प्रभु, हमें पावन बना, हमें सूची कर। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। एक साथ, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। पावन आत्मा हो, पावन आत्मा, पावन आत्मा हो, पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। आजा प्रभु पावन आत्मा, पावन आत्मा ओ पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। फिर से अभिषेक कर दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक कर दे, फिर से तूफान आने दे। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু, আবার তোমার পবিত্র নামে প্রভু আমরা তোমার পবিত্র মন্দিরে আসতে পেরেছি প্রভু। 2 সপ্তাহ হয়তো প্রভু আমরা আসিনি, কিন্তু তুমি জানো প্রভু আমরা সকলে মায়ের নবীনাতে ছিলাম, এবং তুমি যখন ক্রুশে প্রভু মৃত্যুবরণ করছিলে প্রভু, তুমি মাকে বলেছিলে ওই দেখো তোমার পুত্র, এবং ছোট যোহনকে বলেছিলে ওই দেখো তোমার মা। শুধু ছোট যোহন নয় প্রভু, তুমি মাকে আমাদের সকলকে দিয়ে গেছে প্রভু। তিনি তোমার মা, সারা পৃথিবীর মা, আমার মা। তাই যখন আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, মা আমাদের প্রার্থনা প্রভু তোমার চরণে রাখে, এবং সেই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করো। তাই জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। এবং আমরা একটা নাজারেত পরিবার প্রভু, যে পরিবারে প্রভু স্বয়ং তুমি আছো প্রভু, আছে পালক পিতা সাধু যোসেফ এবং মা, সেটি হচ্ছে নাজারেত পরিবার। তাই প্রভু প্রার্থনা করি যেন এইভাবে আমরা নাজারেত পরিবারে সর্বদা থেকে তোমার প্রশংসা গৌরব করতে পারি প্রভু। তুমি আশীষ দান করো প্রভু। প্রার্থনা করি প্রভু, বিশেষ করে এই ক্রয়ের গ্রুপকে তুমি আশীর্বাদ করো। যতজন এখানে আমরা আছি প্রভু, আমার ভাই এবং বোন, ছোট বোনরা প্রভু, তুমি সকলকে তোমার আশীষ দি ভরো, তোমার অভিষেক দি ভরো, কণ্ঠস্বর দাও প্রভু। যেন যেভাবে আমরা আরাধনা করছি প্রভু, এই আরাধনা প্রভু আত্মা সত্যি যেন আরাধনা করি প্রভু। এই আরাধনায় প্রভু তোমার আত্মা যেন নেমে আসে প্রভু, প্রত্যেকে যেন তোমার সেই আত্মাকে পায় প্রভু, তোমার প্রশংসা গৌরব করে, তোমার আরাধনা করে প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তুমি তো সেই পিতা প্রভু, যখন সেই পুত্র, ছোট পুত্র ফিরে এসেছিল প্রভু, সে পিতা তাকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল। আমরাও প্রভু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভু হয়তো ভুল ত্রুটি করে থাকি প্রভু, অনেক পাপ হয়ে থাকে প্রভু, কিন্তু তুমি পাপ দেখো না প্রভু, তুমি ভালোবাসার ঈশ্বর। যিশায় ভগবতী 43:4 বলছো, আমি তোমাকে প্রেম করিয়াছি। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাদের ভালোবাসো প্রভু, প্রেমের ঈশ্বর, ভালোবাসার ঈশ্বর। তো
তুমি যদি আমাদের পাপ দেখো, তোমার কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা নেই প্রভু। তুমি চাও যেন প্রভু আমরা ফিরে আসি প্রভু, একটা ভালো মানুষ, একটা ভালো তোমার দাস হতে পারি প্রভু। আমাদের এই জীবন থেকে তুমি গৌরবান্বিত মহিমান্বিত হও প্রভু। যেভাবে তুমি পিতরকে বলেছিলে আর মাছ নয় মনুষ্যধারী বানাবো, আমাদেরকে তৈরি করো প্রভু। আমাদের কথাবার্তা, আচার ব্যবহার এই জীবনের মাধ্যমে যেন প্রভু তুমি প্রকাশ পাও। আমাদের দেখে যেন মানুষ বলে আমরা তোমার সন্তান। হ্যাঁ প্রভু, যেন একটি মাত্র মেষ, তুমি আমাদের একটি মাত্র যেন মেষ দহলায় প্রভু, এবং তোমার রাজ্য বিস্তার যেন আরও প্রভু এগিয়ে যেতে পারি প্রভু। লাইট মিনিস্ট্রিকে আশীর্বাদ করো প্রভু, মিনিস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি পরিবার, প্রত্যেকটি সন্তানকে আশীর্বাদ করো প্রভু। আমাদের আধ্যাত্মিক লিডারকে আশীর্বাদ করো পিতা, তোমার অনুগ্রহ কৃপা দি ভরো। এবং আজকে যে আত্মার খাদ্য প্রভু তুমি প্রস্তুত করছো, আত্মা দ্বারা তার মধ্যে থেকে বলবে সেটা হচ্ছে আমাদের চরণের প্রদীপ, পথের আলো প্রভু। তোমার বাক্যে তুমি বলছো প্রভু, সেটা যেন শুধু শোনা নয় প্রভু, তোমার পথে চলতে পারে তুমি আশীর্বাদ করো। যদি এখানে কেউ অসুস্থ রয়েছে প্রভু, তোমার পবিত্র হস্ত তুমি বিস্তার করো প্রভু, ছুঁয়ে যাও প্রভু, আত্মা দ্বারা সুস্থতা দান করো এবং তোমার অভিষেক দিয়ে সকলকে ভরো প্রভু। তোমার প্রশংসা, মহিমা, গৌরব করি। সমস্ত বিষয়ে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু, যে তুমি সুস্থ রেখেছো, আমি বেঁচে আছি প্রভু, তোমার আরাধনা করতে পারছি, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু। ধন্যবাদের ঈশ্বর প্রভু, তোমার প্রশংসা করি প্রভু। হালেলুয়া। সমস্ত বিষয়ে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। প্রার্থনা নাজরেতে যিশু নামে চাই, শ্রবণ ও গ্রাহ্য করো। প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই, জানিয়ে পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদাই। প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই, জানিয়ে পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদাই। শত পরীক্ষায় বিপদে হারিয়ে না যায়, শত পরীক্ষায় বিপদে হারিয়ে না যায়, তুমি বিনা আর কেউ নাই। প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই, জানি পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদাই। প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই, জানি পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদাই। যত দূরে যাই না চলে, ছেড়ো না আমায়, করুণাময় প্রেমিক প্রভু। তোমার চরণে দাও ঠাঁই, জয় যিশু যিশু জয় যিশু জয়, জানি ফিরে আসবে ধরায়। জয় যিশু যিশু জয় যিশু জয়, জানি ফিরে আসবে ধরায়। সেই আগমনের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত করো আমায়। প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই, জানি পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদা। প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই, জানি পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদা। পার করো মোর জীবন তরি,
যিশু জয় যিশু জয় জানি ফিরে আসবে ধরায় জয় যিশু যিশু জয় যিশু জয় জানি ফিরে আসবে ধরায় সেই আগমনের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত করো আমায় প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই জানি এ পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদা প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই জানি এ পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদাই শত পরীক্ষায় বিপদে হারিয়ে না যায় শত পরীক্ষায় বিপদে হারিয়ে না যায় তুমি বিনার কেউ নাই প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই জানি পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদা প্রভু যিশু তোমার সাথে চলতে আমি চাই জানি পথ সহজ নয় তাই কাছে থেকো সদা Let us all close our eyes for a few minutes. সবাই চোখ বন্ধ করে নিই। As I am going to read the word of God, everybody listen carefully to each and every word of the Lord and listen to the message that the Lord wants to give us today. A reading from Psalms 100, a hymn of praise. Sing to the Lord, all the world. Worship the Lord with joy. Come before Him with happy songs. Acknowledge that the Lord is God. He made us, and we belong to Him. We are His people. We are His flock. Enter the temple gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise Him. Amen. The Lord is good. His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. The word of our Lord. Amen. यीशु एक साथ जय यीशु हालेलुया हालेलुया Hallelujah. आपके बगल में जो है थोड़े से हाथों को मिलाकर जय यीशु जय यीशु। परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए जय यीशु हालेलुया एक साथ हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है आमीन मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो दाहिने हाथों को उठाकर जलाल हो जलाल हो सभी कोई मिलकर एक साथ जलाल हो जलाल हो। हालेलुया 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 जय यीशु की जय जय आत्मा की जय हालेलुया आवाज ऊंचा करते हुए हालेलुया अपनी मुक्ति के कारण हालेलुया अपने परिवार के लिए हालेलुया अपने छुटकारा के लिए हालेलुया 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 जय यीशु हालेलुया हालेलुया
आइए तालियों के साथ उसे धन्यवाद देते हैं, एक साथ तालियों के साथ। आमीन। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तालियों के साथ, आराधना के साथ, स्तुतियों के साथ उसकी प्रशंसा, जय जयकार, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। जिसकी अजब मिसाल हो, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। आमीन, हालेलुया। तालियों के साथ, आराधना के साथ सभी को हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। मेरे होठों पे तेरा नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। तेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, हालेलुया, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. पूजा करूं तेरी परस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं या परस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफाला जवाब हो, तेरी वफाला जवाब हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल
मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल 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 हो। हालेलुया 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 अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा था, परमेश्वर ने कहा अपने जूते को खोलकर आओ, क्योंकि ये स्थान पवित्र है। दोबारा परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर एक जीवित मंदिर बनाकर जिसमें हमें और आपको आने की आशीष प्रदान की है। इसीलिए जब भी हम लोग मंडली में चर्च में आते हैं, उनके घर में हम लोग प्रवेश करते हैं। अभी इस समय आप जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान पवित्र है, वो स्थान जीवित है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने पुकारा है। अपने मन के गहराइयों से उसे बुलाइए, अपने दिल की गहराइयों से उसे पुकारिए। जैसे मैं इस समय अपने मन, अपने तन, अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पण कीजिए। अपने बीमारी को मत देखिए, अपने कमजोरीपन को मत देखिए, अपने दुर्बलताओं को मत देखिए। आपके पास क्या नहीं है उसे मत सोचिए। देखिए, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको खड़े होने की आशीष दी है, परमेश्वर ने उसके नाम को लेने की कृपा प्रदान की है। दोबारा उसके चरणों में आकर आप उसके महानाम की स्तुति कर पा रहे हैं, उसके लिए उसे धन्यवाद दीजिए। क्योंकि जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर के सामने में हम लोग खड़े हैं। इस समय अपने तन से, अपने मन से पवित्र आत्मा की आहोश में आकर प्रभु को समर्पण करते हैं। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं
मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। हालेलुया, एक साथ हालेलुया। हालेलुया। सभी कोई बैठते हैं। ये मेरा बाइबल है, इसे लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा वो मेरे लिए है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि प्रभु ने कहा है अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं। आमीन, हालेलुया। कितने जन अपने साथ में बाइबल लाए हैं? बाइबल को साथ में ज़रूर लाइए क्योंकि ये आपका अस्त्र है, आपका जीवन है। आप जितने अपने साथ में बाइबल को रखेंगे, कहीं पर भी सभा में जा रहे हैं, बाइबल ज़रूर संग में लेकर जाइए क्योंकि बाइबल रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, दोबारा 2 हफ्ते के बाद हम लोग मिल पाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर हम लोग मिल रहे हैं। पूरे साल में ये 14 सितंबर एक बहुत ही आशीषमय दिन है क्योंकि इस दिन क्रूस का पर्व मनाया जाता है। जिस दिन सही मायने में जो क्रूस हम लोग देखते हैं, जिस क्रूस के बारे में हम लोग सुनते हैं, वो क्रूस को ढूंढकर निकाला गया था, उस क्रूस को खोज कर निकाला गया था। आमीन। संत हेलेना के माँ जो राजा के एम्पायर में काम करते थे, उसने एक संकल्प ली थी कि यीशु का क्रूस कौन सा है, यीशु की पवित्र चीज कौन सी है, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। इसी उल्लास से उसने उस स्थान पर जाकर क्रूस को ढूंढा जहां पर 3-4 क्रूस मिले थे, मगर उनमें से एक ही क्रूस जो लोगों को छूने के द्वारा चंगाई मिल रहा था, और उसी तरह उस क्रूस को स्थापन किया गया मंडली के कार्य के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे जन कहते हैं चर्च बनता है। आज मैं एक खुलासा आप लोगों के पास करता हूं, जान लीजिए कोई जगह चर्च नहीं होता है। चर्च बनाने के लिए क्रूस की लकड़ी बहुत ज़रूरी होता है। हर चर्च में, जैसे आप इस चर्च में हैं, आप पूछ सकते हैं कि ब्रदर यहाँ पर भी है। हाँ, उस क्रूस की छोटी सी एक टुकड़ा लकड़ी की एक छुआवत जो पोप से होते हुए कार्डिनल के पास, कार्डिनल से होते हुए बिशप जी के पास, उसके पास वो आशीषमय करते हैं कि कौन सी जगह चर्च बनेंगे। हर जगह चैपल बन सकता है, आराधना का केंद्र बन सकता है। आप जहां पर खड़े हो जाएंगे वहां पर आराधना आप कर सकते हैं, वहां पर आप रोटी तोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर उस जगह को आप चर्च नहीं बना सकते हैं क्योंकि जब तक उस जगह को स्थापन किया नहीं जाता है। ये कैथोलिक कलीसिया की सबसे बड़ी आशीष है। जहां पर कोई चर्च बनता है उस जगह पर प्रभु की क्रूस का उस टुकड़ा कुछ ना कुछ स्थापन किया जाता है, उसके बाद वो चर्च बनता है। जैसे इस वेदी को आप लोग देख रहे हैं, ये वेदी जब बन रहा था तब मैं भी यहाँ पर था, जहाँ पर इस क्रूस की उस छोटी सी तिनका को रखा गया जिसके द्वारा इसे स्थापन किया गया है। आमीन, हालेलुया। ये आज की प्रचार की विषय नहीं है क्योंकि ये प्रचार नहीं है। परमेश्वर के क्रूस के बारे में प्रचार की जरूरत नहीं है। आमीन, क्योंकि क्रूस जिंदा है और जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 12 में, आसमान और पृथ्वी पर एक सिर्फ नाम दिया गया है जो नाम हमें और आपको परित्राण दे सकता है। आमीन। अगर मिला है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 12। हालेलुया, हालेलुया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। सुन लीजिए मेरे प्रियजन, मैं सीधा और कीजिए, कोई भी जगह पर चले जाइए, 9 दिन 10 दिन बिता लीजिए, मगर उद्धार अगर आपको कोई दे सकता है वो आपका जीवित परमेश्वर, उसके सिवा और कोई नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आपको मुक्ति का मार्ग बहुत सारे जन बता सकता है। उदाहरण मुझे भी ले सकते हैं, उदाहरण रेजिना दी को ले सकते हैं, सभी कोई मुक्ति का मार्ग आपको बता देंगे, मगर मुक्ति देने का अधिकार हमें और दीदी को या किसी भी को नहीं है। हालेलुया। मुक्ति अगर कोई दे सकता है वो परम प्रधान परमेश्वर यीशु नाजरी, जिसके नाम से मुक्ति मिल सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 उसने कहा एक सिर्फ नाम, जो नाम परित्राण दिया जा सकता है, जो नाम के सिवा और दूसरे नाम और नहीं मिलेगा। आज के लोग, बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार को ढूंढते हैं कि मेरे चिन्ह चाहिए, परमेश्वर का चिन्ह चाहिए। प्रभु ने कहा जोनास का चिन्ह से बड़ा और कोई चिन्ह नहीं है, और कोई चिन्ह दिया नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें वो छिपा हुआ रहस्य है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 होना चाहिए, 38, जहां पर लिखा हुआ है जोना के चिन्ह के सिवा और कोई चिन्ह दिया नहीं जाएगा। प्लीज रीड। आमीन। Matthew chapter 12 verses 38. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की आमीन। जय। आमीन। तब बहुत सारे फरीसी लोग उसे कहने लगे, हे गुरु, मुझे कोई चिन्ह दिखाइए, हम लोग देखने की इच्छा रखते हैं। तब उसने उत्तर देकर कहा, हे दुष्ट लोग, इस काल के व्यभिचारी लोग, तुम लोग सिर्फ चिन्ह के अन्वेषण करते हो, मगर जोना भववादी के चिन्ह छोड़कर और कोई भी चिन्ह तुम लोगों को दिया नहीं जाएगा। क्योंकि जोना जिस तरह 3 दिन और रात उस बड़े मत्स्य के उदर पर रहे, और मनुष्य भी उसी तरह दिन और रात पृथ्वी के गर्भ पर रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 एक साथ हालेलुया, हालेलुया। 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 एक महान चिन्ह जो हमें और आपको दिया जाएगा, वो नासरत यीशु मसीह का नाम। इसीलिए ये क्रूस बहुत ताकतवर है। जिसके पास क्रूस है उसके पास जीवन है। आमीन। आमीन। बोलो मेरे साथ, जिसके पास क्रूस है जिसके पास क्रूस उसके है, पास जीवन है। उसके पास जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। अरे भाई, ये मेरा बात नहीं है। प्रभु कहते हैं जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो अपना क्रूस उठा ले। आमीन। प्रभु ने नहीं कहा चद्दर उठा लो, प्रभु ने नहीं कहा चलो जो जो सामान है उठा लो। प्रभु ने अपने चेलों को भेजा और कहा कुछ सामान मत लो, जाते वक्त कुछ साथ में मत लो। जैसे जा रहे हो, कोई अगर घर में आने दे तो ठीक है, अगर नहीं आने दे तो भी ठीक है। अपने पैरों के धूला झाड़ कर निकल आना। उसके घर में जाओ, जाकर कहो तुम्हारा शांति हो, बोलकर निकल आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 62, 62। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 62। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य का, सुनाई नहीं दे रहा है, किसके राज्य क्या? परमेश्वर के राज्य का। जान लो, तुम ऐसे एक व्यक्ति हो जिसे परमेश्वर ने चुना है। दुनिया के कोई लोग ने तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। पवित्र आत्मा का सिग्नेचर तुम्हारे ऊपर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। 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 तुम्हारे बगल में तुम्हारा चाचा रहता है, उसे उस सिग्नेचर दिया नहीं गया है। तुम्हारे करीबी दोस्त जो तुमसे हर दिन बातें करता है, उसे ये सिग्नेचर दिया नहीं गया है। तुम्हारा प्रिंसिपल, तुम्हारा मिनिस्टर, तुम्हारे ऑफिस के बॉस को ये सिग्नेचर दिया नहीं गया है, मगर तुम्हें दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 में लिखा हुआ है, हे याकूब, तू मेरा है, मैंने तुझे चुना है। पढ़ते हैं, बहुत सुंदर और भी लिखा होना चाहिए, वो 1 और 2 पद। प्रेज द लॉर्ड। 43:1 आइज़ाया। हालेलुया।
एक साथ हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हाँ। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे हे याकूब इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ मैंने तुझे नाम छुड़ा लेकर लिया। बुलाया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। क्या लेकर बुलाया है? नाम लेकर बोलो बुलाया ना, है। क्या लेकर बुलाया है? नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया। 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 ये बहुत सारे यूथ है, आप लोग जानते हैं, इन लोगों के मोबाइल में एक नाम ऐसा है जो लोग अपने प्यारे से परिचय से वो नाम लिख कर रखा है। शायद उसका नाम वो नहीं है, मगर वो प्यार से वो नाम लिख कर रखा है और ये किसी को पता नहीं है। सत्य बोल छी। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सही बात है कि नहीं? जिसे हम प्यार करते हैं उसे कुछ ना कुछ नाम से पुकारते हैं। जैसे मेरे पत्नी मुझे पापा कह के पुकारते हैं। ये परिचय है, रहना बहुत जरूरी है। आपका परमेश्वर आपको किस नाम से पुकारता है, क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जब याकूब उस रात को स्वर्ग के दूतों से लड़ रहा था, उस पोनुएल से लड़ रहा था, तब तक उसने पोनुएल को नहीं छोड़ा जब तक पोनुएल ने अपना नाम नहीं बताया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग के दूत, उसने कहा मैं स्वर्ग के ईश्वर के सम्मुख रहता हूं, मैं उसके मुंह का दर्शन करता हूं। दूत ने उसे मारा भी, वचन कहता है उसके जांघों में दूत ने मारा, मगर तो भी उसने दूत को नहीं छोड़ा तब तक जब तक तू अपना नाम नहीं बताएगा। और देखिए, ईश्वर ने उस याकूब का नाम बदलकर इज़राइल बना दिया। आमेन। आमीन। आज परमेश्वर आपको किस नाम से पुकारता है? आपका प्यारा नाम कौन सा है जो आपको वो बुलाते हैं? आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक साथ हालेलुया। Hallelujah. मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18, जान लो, इस वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसके साथ बहुत ही सुंदर एक रिलेशन है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18, हालेलुया। Hallelujah. एक साथ पत्संग का 13, प्रेज द लॉर्ड, 13। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, हाँ, तो मैं तुमसे सच कहता हूं सच कहता हूं कि वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटके नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे लिए करेगा, जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा, जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा, किस भेड़ के लिए करेगा। बोलो ना, इस भेड़ के लिए, बोलो ना जोर से, किस भेड़ के लिए? इस भेड़ के लिए, बोलो ना, किस भेड़ के लिए? इस भेड़ के लिए। इस भेड़ के लिए उतना आनंद करेगा। आमेन। Amen. लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पदसंग का 7 और पदसंग का 10 में उसने कहा, स्वर्ग में आनंद का धूम गिर जाता है, स्वर्ग के दूत आनंद मनाते हैं। आमेन। आमीन। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 अंतिम वचन में कहा गया है, ये मेरा बेटा मर चुका था और जीवित हुआ है, ये खो चुका था आज मिल गया है। आमेन। Amen. आपका परमेश्वर आपसे ठीक इस तरह से प्यार करता है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सुनो, एक रहस्य, बहुत सारे कम जन है, इसे जान लीजिए। ज्यादातर जनों के लिए ये गिफ्ट नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उपहार चाहिए ना? उपहार चाहिए ना? Yes. नहीं पाने का आदत डाल लो। उपहार चाहिए ना? नहीं पाने का आदत डाल लो। कैसे मालूम है? जो पिता या जो माता जिस बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं, वो पहले उस चीजों के लिए समय लेता है, धीरे 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 उसे जुगाड़ करता है। उसके माता पिता के दिल में रह जाता है मेरे बच्चे को ये देना है, और वो एक दिन ना एक दिन पूरा करता है, क्योंकि आप उनके बहुत करीबी है। आपका प्रार्थना वो सबसे पहले सुनकर रखता है। अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ कहो कि मुझे पता है पिता, तू जरूर मुझे देगा। आमेन। तू जरूर मुझे देगा। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ समय की अपेक्षा करो, वो ऐसा देगा कि देता रहेगा, देता रहेगा और देता रहेगा। आमेन। जानते हो, ये रहस्य जान लो,
जब आदम और हवा से कहा था इस पेड़ के फल को मत खाना, वही परमेश्वर एक व्यभिचारी नारी से भी कहा था। पद संख्या 10 में लिखा हुआ है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 अध्याय 3 पद संख्या 10 में लिखा हुआ है, अगर तू जानता ईश्वर का दान क्या है, इट इज द ट्रू फैक्ट इफ यू नो व्हाट इज द ब्लेसिंग फॉर गॉड, अगर तुझे पता रहता परमेश्वर की आशीष क्या है, तो दूसरा किसी भी चीजों को नहीं मांगता। आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अध्याय 7 पद संख्या 38, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38 एंड 39 39 ऑल्सो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक साथ जो हालेलुया। मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि जो उसके मुझ पर विश्वास करेगा, करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, बोलो ना, जो मुझ पर, बगल में जो है उसे कहो विश्वास करो, विश्वास करो, जोर से बोलो विश्वास करो। विश्वास करो। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये हालत, एक विश्वास कैसी होनी चाहिए पता है आपको? एक छोटी सी उदाहरण देते हैं, जान लीजिए विश्वास कैसी होनी चाहिए। एक शराबी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरे लीवर खराब हो चुका है, कुछ ना कुछ दवाई दीजिए। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम शराब कब कब पीते हो? बोले डॉक्टर सिर्फ 2 दिन पीते हैं। हाँ, सिर्फ 2 दिन पीते हो और तुम्हारा लीवर खराब हो चुका है? हाँ डॉक्टर साहब, लीवर खराब हो चुका है। तो कौन सा 2 दिन पीते हो? डॉक्टर, जिस दिन बारिश होता है उस दिन पीते हैं, और जिस दिन बारिश नहीं होता है उस दिन पीते हैं। जिस दिन बारिश होता है उस दिन पीते हैं, और जिस दिन बारिश नहीं होता है उस दिन पीते हैं। विश्वास हर वक्त रखो तुम्हारे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। बारिश हो चाहे या नहीं हो, परमेश्वर का आशीष तुम्हारे लिए उतरेगा, उतरेगा और उतरेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 होना चाहिए, पद संख्या 38, जहां पर लिखा है, आसमान और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन, Amen. आमीन। Amen. अध्याय 24, हालेलुया, Hallelujah. बोलो ना, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय। हालेलुया। हालेलुया। पद संख्या 34, पद संख्या 34 34, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, पूरी ना हो बे। तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना परंतु मेरे बातें कभी नहीं टलेगी। आमीन, 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 हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियजन, अपने जीवन में परमेश्वर की क्रूस को जरूर रखिए। बहुत सारे जन अपने जीवन में क्रूस को उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत तकलीफ का चीज है। इसीलिए ज्यादातर लोग कैरिस्माई सभा में आते हैं चंगाई और चमत्कार के लिए, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए नहीं। आप लाखों लाखों भीड़ पाएंगे, चिल्लाते हुए लोग पाएंगे, आराधना हाथ उठाकर बहुत सारे कुछ करते हुए लोग पाएंगे, मगर परिवर्तनशील लोग कुछ जनों को पाएंगे जो प्रभु में बैठे हुए हैं, वचन सुन रहे हैं और वचन को पालन कर रहे हैं। धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थोमा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, वो दिन आ रहा है जब लोग मुझे नहीं देखेगा मगर तो भी मेरे ऊपर भरोसा रखेगा। आमीन, विश्वास करेगा कि मैंने उन लोगों को आशीष प्रदान की है। आमीन, ये विश्वास आना बहुत जरूरी है। हम लोगों के जीवन में क्रूस, बहुत सारे जन क्रूस को उठाना नहीं चाहते। क्रूस क्या है? क्रूस आनंद का कारण नहीं होता है, जान लीजिए प्रियजन।
क्रूस दुखों का कारण भी नहीं होता है। आपका जीवन का क्रूस आपको आगे बढ़ने की आशीष देता है। आपके जीवन का क्रूस आपको स्वर्ग के और करीब पहुंचने की आशीष देता है। आपके जीवन का क्रूस आपको परमेश्वर को समझने की आशीष देता है, क्योंकि आप और हम जगत के जिस दलदल में चल रहे हैं, इस दलदल में हर वक्त छलाव, हर वक्त पाप, हर वक्त लोभ, हर वक्त छलना, हर वक्त कोई ना कोई कठिन रास्ता है जिसमें हमें और आपको गिरना पड़ता है। धन्य है वो व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर का क्रूस है, क्योंकि क्रूस के द्वारा वो सभी चीजों को जयलाभ कर पाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 क्योंकि क्रूस को साथ में रखना बहुत जरूरी है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पॉकेट में क्रॉस रहना चाहिए। मुझे आज भी याद है, ये जब मैं शुरुआत प्रार्थना में आया था, बहुत सारे यूथ लड़के लोग थे, वो लोग बहुत बड़े बड़े क्रूस, अभी भी रखते हैं कि नहीं पता नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्रूस ये कमर में गोंज कर रखते थे, अंदर में लगा कर रखते थे। वो लोग कहता था कि ये क्रूस रहना जरूरी है। धीरे धीरे पता चला उस क्रूस में कुछ नहीं है, परमेश्वर का क्रूस तो दिल में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का क्रूस आपके साथ में रहना बहुत जरूरी है। जहां पर आप खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर का आशीष का वर्षण होना चालू हो जाएगा। आमेन। पहला कोरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 18। पहला कोरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 1। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु की जय। क्योंकि क्रूस की कथा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। बोलो ना, क्या है? मूर्खता है। जो लोग नाश होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, आपको पता नहीं है अभी के जो समय चल रहा है, बहुत सारे लोग प्रभु के बारे में जानते हैं मगर वो प्रभु के करीब आना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे जन परमेश्वर के बारे में जानते हैं मगर परमेश्वर को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मगर मैं नहीं आऊंगा। आप क्या समझते हैं? क्या वो लोग खुद से नहीं आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को मुक्ति मिले। जान लीजिए अच्छी तरह से। आप बोल सकते हैं कि ब्रदर मैं तो मेरे पति के लिए बहुत प्रार्थना करता हूं मगर मेरे पति नहीं आ रहा है। मेरे घर के पड़ोसी के लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूं मगर वो लोग बहुत सारे रिट्रीट में जाते हैं मगर प्रार्थना में नहीं आते हैं। आपको पता नहीं है क्यों नहीं आ रहा है। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल अध्याय, अंतिम अध्याय अगर देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। 26-27 प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम अध्याय 28 पद संख्या 26 और 27। जाकर इन लोगों से कहो कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे। क्या होगा? ना समझोगे, परंतु क्या होगा? ना समझोगे। उसके बाद और देखते तो रहोगे। क्या देखते? देखते तो रहोगे परंतु ना बुझागे, ना बुझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और इनका कान भारी हो गए हैं। समझ पा रहे हैं ना? इन लोगों का हृदय नहीं समझना और इन लोगों के कान भारी हो चुका है, जो सुनना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। और उन्होंने अपनी आंखें को भी बंद की है। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखें से देखे, कभी आंखें से देखे, और कानों से सुने, और मन से समझे, और फिर और मैं उन्हें चंगा करूं। समझ पा रहे हैं? प्रभु नहीं चाहता है कि ये सुने, ये समझे
और ये प्रभु के करीब आए। सावधान प्रियजन, अगर आज परमेश्वर ने आपको निकाला है, परमेश्वर का कोई ना कोई परिकल्पना है। इट्स अ प्लान। कौन सी परिकल्पना है प्रभु से पूछिए। प्रभु की परिकल्पना यह नहीं है कि आपको चंगाई मिले, प्रभु की परिकल्पना नहीं है कि आपको धन दौलत मिले, प्रभु की परिकल्पना नहीं है कि आपका एक घर था और 5 घर हो जाए, प्रभु की परिकल्पना नहीं है कि आपका एक गाड़ी था 5 गाड़ी हो जाए, आपके पास अभी मोबाइल है कल एप्पल फोन आ जाए। परमेश्वर का यह परिकल्पना आपके लिए नहीं है। प्रभु की यह परिकल्पना नहीं है कि मैं दुआ करता हूं आपका पर्स में और ज्यादा एटीएम कार्ड आ जाए, नहीं, और ज्यादा पैसा भर जाए, नहीं। ऐसा दुआ परमेश्वर कहीं वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। यह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष तो धन दौलत और कृपाओं को लाता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का आशीष है वो ऐसे ही धनवान बन चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का धन उसके साथ में चल रहा है। आमीन, हालेलुया। याद है ना पतरस ने क्या कहा था उस खंजे व्यक्ति से? पदसंख्या अध्याय 3 पदसंख्या 5 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के पुस्तक। उसने कहा ना मेरे पास सोना है ना मेरे पास चांदी है, मगर मेरे पास जो है मैं उससे कहता हूं नाजरत यीशु मसीह का नाम। आमीन, हाथ उठाकर कहिए मेरे पास यीशु मसीह का नाम है। मेरे पास यीशु मसीह का नाम आमीन। है। आमीन। अपने डर से कहिए मेरे पास यीशु मसीह का नाम है। मेरे पास यीशु मसीह का नाम आप है। जिससे डर रहे हैं उससे कहिए मेरे पास यीशु मसीह का नाम है। मेरे पास यीशु मसीह का नाम छोटी है। सी ट्रिक्स, किसी से डर है बातें करने के लिए, पहले कहिए मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, उसके बाद जाइए। आप जानते हैं याकूब ने क्या किया था? याकूब ने क्या किया था? कितने जनों को पता है? याकूब के बारे में सुने हैं? सुने हैं ना? आमीन। 2 भाई थे, इसहाक के 2 लड़के थे, एक का नाम ईसाऊ, एक का नाम याकूब। ईसाऊ के शरीर में बहुत सारे लोम थे और याकूब देखने में सुंदर था, घर का काम करते थे। आमीन। बहुत सारे जन कहते हैं याकूब ने छल से आशीष चोरी की है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी छिपा हुआ है, कभी दूसरे दिन रिट्रीट में बताएंगे। उसने अपने भाई के आशीष को अपने जीवन में ले लिया। उस वक्त ऐसा वक्त था जब पिता कोई भी आशीष दे देता था, वो आशीष होता था और होता था। आमीन। आमीन। आज भी वो दौर चल रहा है। अगर कोई विश्वासी आपके लिए आशीष की प्रार्थना कर चुका है, जान लीजिए आज नहीं तो कल आपका विश्वास वो आशीष को स्वर्ग से नीचे जरूर उतारेगा। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। 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 किसी ने भी आपसे कहा है आपका 2 तल्ला घर बन जाएगा, अगर आपको पता है वो विश्वासी व्यक्ति है, वो प्रार्थना करता है, प्रभु के द्वार पर बैठा रहता है, हिचकिचाइए मत विश्वास करने के लिए, सोचिए मत विश्वास करने के लिए, सिर्फ प्रभु से कहिए मैं विश्वास करता हूं। जान लीजिए मरने से पहले परमेश्वर आपको 2 तल्ला घर से घुमा कर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि वो अपने दास दासी की प्रार्थना मिट्टी में गिरना नहीं देते हैं, उसे अंकुरित करते हैं, फलवान करते हैं कि लोगों को पता लगे कि परमेश्वर की आशीष क्या है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 यही याकूब जब वो अपने भाई से करीबन 20 साल 24 साल बाद उसने मिलने के लिए आया था, उसने सोचा मेरे भाई मुझे अब मार देगा क्योंकि मैंने उसके आशीष को चोरी की। उस रात को उसने उस दूत से बातें की, युद्ध किया। उसके बाद उसने उस जगह में परमेश्वर का नाम का बलि चढ़ाया और भेंट चढ़ाया और उसने कहा परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चल। अब जानते हैं सुबह क्या हुआ था? जब वो अपने भाई से मिला, उसके भाई भी अपने दोनों बाहू को फैलाते हुए उसे गले लगा लिया। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने डर से, अपने डरे हुए व्यक्ति से, अपने जीवन के अंधकार से, अपने घिनौने कामों से, अपने पाप से, अपने ना
छोड़ने वाली आदतों से कहेंगे मेरे साथ यीशु नाम है, वो डर कर भाग जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. वो आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. वो आपसे निकल कर भाग जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अगर किसी व्यक्ति से ये दुनिया डरता है, वो नाजरेत यीशु मसीह के नाम से डरता है। आमीन। डरते हैं क्योंकि लोगों को पता है इस नाम में सामर्थ छिपा हुआ है। वचन कहता है, फिर से कोरिन्थियों की पुस्तक आते हैं, इसे खत्म करते हैं जल्दी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो लोग, लिखा है कि जो लोग क्रूस की बातें, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्सेस 18, आमेन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। फिर से बोलो, परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने के पाने वालों के लिए परमेश्वर की। क्या आपको उद्धार मिला है? दाहिने हाथों को उठाकर, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ। आमेन। 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 हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। 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 Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब आप नया कोई चीज खरीदते हैं, कितने जन छिपा कर रखते हैं? कितने जन छिपा कर रखते हैं? सोचिए, कोई मोबाइल फोन आपने खरीदा है, कोई अच्छा अंगूठी, सोना का अंगूठी आपने बनाया है, गले का चेन अच्छा बनाया है, कितने जन आप छिपा कर रखते हैं? कोई है छिपा कर रखता है? कोई है छिपा कर रखते हैं? गले का चेन देखिए, अगर बना रहता है वो बाहर निकाल कर रखता है कि नहीं? हाँ। जिसके हाथों में नया अंगूठी रहता है वो बार बार हाथ को ऐसा ऐसा करता है कि लोगों को पता लगे। मैंने देखा बहुत सारे जन को, फिर से माइकल मैं बोल रहा हूं, सुनो, मैंने देखा बहुत सारे जन को नया मोबाइल खरीदा है और ठीक ऐसे करके पकड़ रहा है। मैंने बोला भाई हाथ में क्या हुआ है? नहीं, हाथ ना थोड़ा दर्द कर रहा है। ओ शायद इस हाथ में दर्द है। अच्छा समझ आया, हाथ का दर्द नहीं, कुछ दूसरा कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 सुनो सुनो सुनो, बहुत सारे जन कहता है मेरे उड़नी का कलर अच्छा है, मेरे उड़नी का कलर अच्छा है। वो उड़नी दिखाने के लिए आपको कलर देखने नहीं कह रहा है। जब आप उड़नी देखेंगे, पूरा सलवार आपके आंखों में आएगा, तब वो पूछेगा ये सलवार कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। और एक रहस्य बता रहे, ये भी जान लो दादा क्या क्या बोल रहा है। नया कपड़ा निकाल कर इस्त्री करके दोबारा पहनता है, क्योंकि उसे लगता है कि अंदर में कहीं ना कहीं भांज लगा हुआ है, मगर वो नया है। उसके दिल में शक लिखा हुआ है। सत्य बोलची ना? अरे बाबा रे। हालेलुया। दिखाओ अपने परमेश्वर को सबके सामने में, निकालो अपने परमेश्वर को सबके सामने में, पता लगे लोगों को कि तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारे साथ बातें करता है। तुम वो व्यक्ति हो जिसके साथ उसका चमक आगे चलता है, पीछे चलता है। जिस जगह पर खड़े हो जाओगे उसी जगह पर लोग पूछेगा ये अंगूठी का चमक कहां से आ रहा है। आमीन। Amen. बताओ लोगों को कि ये चमक मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वचन कहता है, सन पौलुस ने कहा जो भी कोई यीशु में रहता है वो नया सृष्टि बन चुका है। अध्याय 5 होना चाहिए, पद संख्या 17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बोलो बोलो, नई सृष्टि बन चुकी है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें मिट गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 तुम्हारे पुराने बातों को उसने मिटा दिया है, उसके क्रूस के द्वारा उसने सब कुछ मिटा दिया है। आज हम और आप
नया बन चुके हैं। आमेन, आमीन। आमेन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जय यीशु की जय। यीशु के जय। पीछे मत चलो मेरे प्रियजन। अगले हफ्ते बताएंगे पीछे चलने से क्या क्या नुकसान हमारे जीवन में हो सकता है। बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन को पीछे में चलाते हैं, उसे पता नहीं है उसने अपने जीवन को किस मार्ग पर बांध चुका है। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। आइए सभी कोई खड़े हो जाते हैं। इस समय विशेष रूप से अपने जीवन को प्रभु के करीब रखते हैं। रेजी नदी को सामने थोड़ा बुलाते हैं। आइए आज विशेष रूप से चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं, आज आप जब सामने आएंगे प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरा क्रूस को वहन कर पाऊं, तेरे क्रूस की सामर्थ को मेरे जीवन में डाल दे, मेरे साथ तू रह जा प्रभु। इस समय आराधना के गीतों के समय आप अपने सब कुछ उसके चरणों में समर्पण कीजिए। आंखें को बंद कीजिए, क्योंकि आप उसके उपस्थिति में हैं। वो परम प्रधान परमेश्वर जीवन की ज्योति, जीवन की आशीष हमें और आपको बनाता है, जोड़ता है, तोड़ता है और नया करता है। आइए इस समय अपने आप को प्रभु के करीब लाते हैं, आराधना के द्वारा, आशीष के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। जो भी इस समय प्रार्थना चाहते हैं आप आगे आ जाइए विश्वास के साथ कि आज आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। आज आप नए चमत्कार को संग में लेकर जाएंगे, नए चिन्ह चमत्कार को आप संग में लेकर जाएंगे। आमीन। आइए आगे आ जाते हैं सभी को। जो क्रूस से लहू आमीन। बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू। Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Now I pray for those who are belongs to this time. Bless them. Bless, send your blessing, Lord. Lord, touch now, touch now, touch now. You are the miracle, O Lord. We believe your name. We believe your name, O Lord. Jesus, 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 Jesus. जो क्रूस Hallelujah, hallelujah. बहा मेरे लिए। Praise you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. मेरे लिए। Amen, amen, amen. दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरा वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना
पड़ी, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस से लहू ओ जीसस 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 बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, rabba, 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 sharala, rabba, rabba, marala, rabba, shakarala, rabba, rabba. Oh, shamarala, rabba, rabba, diyarala, rabba, rabba, marala, ri. Hallelujah, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Oh, rabba, 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 rabba. ছুঁয়ে যাও প্রভু এই সময় প্রত্যেক জনকে, তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার ক্রুশীয় রক্ত দ্বারা তুমি এই মুহূর্তে স্পর্শ করো, সুস্থতা দান করো। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में नई एक नई बचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई बचा, जो बहाया जहां आमेन आमेन। मेरे गुनाहों के लिए, जो बहाया जहां Oh Jesus, मेरे गुनाहों के लिए, bless your blessing name. उस पर से जो भी पिए कभी ना मरेगा, जो क्रूस से लहू Oh rabba shakarala rabba. Bless you Jesus, bless you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। Amen, 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 hallelujah. काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। Jesus, যিশুর রক্ততে সামর্থ্য আছে, যিশুর রক্ততে সামর্থ্য আছে। আমেন। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने তোমার কাছে প্রার্থনা করি, तेरे लिए পুত্র আত্মার কৃপা, मेरे लिए তোমার অনুগ্রহ, তোমার দয়া, তোমার আশীর্বাদ, তোমার দয়া দাও প্রভু। স্পর্শ করো। क्रूस Amen. की क्या Oh Jesus, बात है, bless Lord, जिसने हमको bless Lord, बचाया। bless Amen. यीशु मसीह ने तेरे लिए
मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए अपना लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए अपना लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए अपना लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय। प्रभु इस समय हर एक परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं। हर एक परिवार की प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। तू जिंदा खुदा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज छुआ है प्रभु हर एक व्यक्तियों को। इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की परेशानियों की आत्मा जो विशेष रूप से दुख तकलीफ का कारण बन रहा है, उन सभी आत्माओं को तो दूर कर। बीमारियों की आत्मा विशेष रूप से
ये मौसम में जितने भी बदलाव की आत्मा है जो विशेष रूप से परेशान कर रहा है, उन सभी आत्माओं को तेरे उस यीशु नाम से, नाज़रेती यीशु मसीह के नाम से तू दूर कर। छू ले प्रभु इस समय, तेरे चंगाई, तेरे चमत्कार से तू भर दे। आशीष, कृपा, दया और अनुग्रह से तू भर। आशीष दे, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इस समय विशेष रूप से तुझसे प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस समय जो भी दान आप देना चाहते हैं, हर एक दानों को परमेश्वर के हाथों में रखते हैं। इस दान में परमेश्वर आशीष दे, जिसके द्वारा आप और भी आगे बढ़ पाए। प्रार्थना करते हैं गिनती के पुस्तक अध्याय 6 पद का, जहाँ पर उसने कहा कि आपका फलवंत मिले और आपको आशीष मिले। परमेश्वर अपने मुंह को ऊंचा करे और आपको शांति प्रदान करे। आमीन। हर प्रकार की अनुग्रह से वो आपको भरे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, सुलेमान जैसा ज्ञान तो नहीं है, सुलेमान जैसा ज्ञान तो नहीं है, मेरी कोई पहचान तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। हालेलुया। सभी को जय यीशु। आ रहा है हफ्ते में हम लोग आशीष को शेयर करेंगे, विशेष प्रार्थना। इसीलिए आ रहा है थर्सडे, आप छोटी सी एक पैकेट बनाकर लाएंगे। हर प्रकार उसमें जो भी लाएंगे वो सूखा रहना चाहिए। जो भी आप पैकेट में लाएंगे वो सूखा रहना चाहिए। आप जिसके बगल में बैठेंगे आप उससे वो पैकेट को एक्सचेंज करेंगे। अपनी চারপাশে বসবেন, তার থেকে সেই প্যাকেটটাকে আপনি এক্সচেঞ্জ করবেন। আর তারপর যাওয়ার সময় আপনার যদি তার থেকে কিছু মনে হয় আপনি দিতে চান, সেটা আপনি দিয়ে যেতে পারেন গির্জের বাইরে। যখন আমরা
যারা দাঁড়াবো আমরা, আমাদেরকে আপনারা দানের স্বরূপ দিতে পারেন। কিন্তু সব নয়, কিছু জিনিস নিজের পরিবারের জন্য নিয়ে যাবেন অ্যাজ আ ব্লেসিং। আমেন। যারা আসেনি তাদেরকে বলুন, আবার থার্সডে থেকে সভা আরম্ভ হয়েছে, তারা যেন যোগদান করে, এবং সকলকে বলুন যেন প্রত্যেকজন, ছোট বড় প্রত্যেকজনই আমরা একটা করে ছোট্ট প্যাকেট তৈরি করে আনতে পারি। একটা বিস্কুটও হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তৈরি করে আনুন। আপনার পাশে যে বসবে তার সাথে সেটা শেয়ার করবেন। দেখবেন না কি আপনি পেয়েছেন, সেই দিনের আশীর্বাদ আপনার ঘরে ঈশ্বর প্রদান করতে চাইছেন, সেটাই হচ্ছে অনেক বড় জিনিস। আমেন। হালেলুইয়া, হালেলুইয়া, একসাথ হালেলুইয়া, হালেলুইয়া। কালকে থেকে 3 দিন সেক্রেটার চার্চে হিন্দিতে রিট্রিট আছে। ফাদার অশোক আলেকজান্ডার আসছেন, যদি আপনাদের কাছে সময় আছে যোগদান করতে পারেন। ঈশ্বরের আরাধনা স্তুতিতে যোগদান করা অনেক ভালো, ঘরে বসে থাকার চাইতে প্রভুর আরাধনা করা অনেক ভালো। যদি সময় আছে অবশ্যই যোগদান করুন। আমেন, হালেলুইয়া। অনেকজন জিজ্ঞাসা করেছে, দাদা আমরা কি ঘরে ভ্যালেঙ্গিনি প্রার্থনা করতে পারি? হ্যাঁ, অবশ্যই পারেন, নিশ্চয়ই পারেন, কোথাও কোনো বাধা স্বরূপ নেই। যে যেমনি নিয়ম রয়েছে অবশ্যই করুন। ভক্তি এবং শ্রদ্ধা নিজের জায়গায়, ভক্তি এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা নিজের পরিস্থিতির মধ্যে এবং নিজের মতো সামর্থ্যের মধ্যেই করবেন। মা কোনোদিন বলেনি অনেক কিছু করার জন্য, সুতরাং অনেক কিছু করতে হবে এর কোনো মানে নেই। যেটুকানি আপনার দ্বারা সম্ভব আপনি অবশ্যই করতে পারেন। যদি আপনি ক্যাথলিক মণ্ডলীতে রয়েছেন, যদি আপনি করে আসছেন, বন্ধ করবেন না, কারণ সেটিতে আশীর্বাদ রয়েছে। আমেন, হালেলুইয়া। একসাথে হালেলুইয়া। জয় যিশুর জয়, জয় আত্মার জয়। হালেলুইয়া, হালেলুইয়া, হালেলুইয়া। সকলকে জয় যিশু।